ठीक है. So dear students, this is the lecture that I will take now. The part that I will focus is on your combined questions sometimes that you will get, और that is the 115 back. ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपको एक दिन पहले एग्जाम का जिस दिन पेपर होने वाला है उस दिन सुबह ये कॉन्सेप्ट आपको देख के जाना है. चांसेस है कि पहले क्वेश्चन में बैक आए, 50-50 probability is there. Last 2 or 3 exams they've not been asking a question on back. So again the chances become very high that you may get a question on back in this attempt, right? Now what happens, I'll tell you. Very, very simple and clear instructions first. Get a few instructions very clear. Here are your instructions that you could get in the exam. First, if you get calculate tax liability, assuming assessee does not want to opt for back. What is back? 115 back is a concessional tax regime applicable to individuals and HUF. तो आपको एक concessional tax regime है which is applicable to individuals and HUF. This concessional tax regime is there, but you have to sacrifice lot of benefits. कौन से बेनिफिट सैक्रिफाइस करने में आपको अभी सिखाऊंगी. पहले अगर आपको बोला जाता है कि एसएससी बैक ऑप्ट ही नहीं करना चाहता तो बेस्ट है, आपको वर्किंग करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रेट से. आपको वर्किंग करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रेट से. ओके, अगर आपको बोला जाता है जस्ट कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, नो इंस्ट्रक्शन अबाउट बैक, कोई आके बताएगा नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं होगा, आपको खुद से नॉर्मल प्लस बैक करना पड़ेगा. If they just say calculate tax liability, you will have to do normal plus back. Is that okay? Normal भी करना पड़ेगा, back भी करना पड़ेगा. जो better है वो choose कर लेना. Then choose whichever is better. जो assessee के लिए better होगा वो choose कर लेना आप, ठीक है. उसके बाद मैम if they say calculate tax liability, assuming he wants to opt for back, फिर से दोनों करना पड़ेगा and you will have to choose whichever is better. Whichever is better means जहाँ पे tax आपका कम आ रहा है. Okay, now ma'am, what is all this? Let us understand. There is 2 tax regime. The normal tax regime that you have studied. Now pay attention and listen. You have a normal tax regime. What tax regime you have? Normal. Okay, now see, there is a normal tax regime and there is 115 back. What is optional in this? This is applicable only to individuals and HUF. This is applicable to individuals and HUF. Let me tell you, in normal tax, you also have AMT, minimum alternate tax. But under back, there is no AMT. AMT खुद में एक अलग concept है, वो भी cover करूँगी अभी. AMT खुद में एक अलग concept है, I'll cover that also. First, let us understand between normal के tax rates and 115 back के tax rates. Correct? Yes, नॉर्मल टैक्स रेट्स में आपको ये समझना है, देयर इज अ नॉर्मल लैडर सिस्टम. अपना लैडर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? अ लैडर सिस्टम इज फ्रॉम 0 to 2.5 lakhs. It's a ladder that you go climbing up. 0 to 250, 250 to 5, 5 to 10 and about 10. Yes, so this is 2.5 lakhs to 5, 5 to 10 and then there is about 10 lakhs. इसके बदले में आपको बोला जाता है आप कंसेशनल टैक्स रेट एक लैडर सिस्टम यूज करो. तो बैक गिव्स यू अ डिफरेंट लैडर सिस्टम. व्हाट बैक गिव्स यू इज 0 to 2.5. अभी 2.5 लाख ऐड करते जाने का, फिर 2.5 to 5, 5 to 7.5, 7.5 to 10 एंड 10 to 12.5. कब तक ऐड करेंगे? जब तक 15 लाख पे नहीं पहुंचेंगे. 12.5 to 15. हाँ, एंड अबाव 15 इट इज 30%. यहाँ के आपको टैक्स रेट्स क्या है पता है? नॉर्मल अपना लैडर का क्या है? 0 to 2.5 पे टैक्स रेट क्या है? 0, देन 5%, देन 20% एंड देन 30%. ये जो बैक का लैडर है ये 5 ऐड करते जाने का. कीप एडिंग 5. सो इट स्टार्ट्स विद 0, देन 5, देन 10, 15, 20, 25 and then 30. Above 15 lakhs it will come to 30. What you have to remember, under normal you have a concept of senior citizens के लिए BEL 3 लाख या 5 लाख होता है. 3 लाख किसके लिए? सीनियर. अबाउ 60 एंड अबाउ 60 एंड अबाउ. 5 lakhs किसके लिए? 80 एंड अबाउ. 5 lakhs किसके लिए? 80 एंड अबाउ. Are you understanding this? Okay. Now ma'am, यहाँ
देर इज BEL इज ऑलवेज 2.5 lakhs, ऑलवेज. यहाँ सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो अगर बाय चांस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और असेसी सीनियर सिटीजन है, कंसेशनल टैक्स रेट में सबके लिए BEL 2.5 लाख, सबके लिए BEL कितना है? 2.5 लाख. सो यहाँ BEL इज ऑलवेज 2.5 lakhs. भले ही आप सीनियर रहो या सुपर सीनियर, वेरी सीनियर, फॉर यू द BEL is always going to be 2.5 lakhs. Keep this in mind. Okay. उसके बाद मैम स्पेशल टैक्स रेट्स. मैम लॉन्ग टर्म एज अ स्पेशल टैक्स रेट्स. यहाँ पे क्या है टैक्स रेट का? द स्पेशल रेट्स कंटिन्यू टू बी द सेम. सो स्पेशल टैक्स रेट्स दोनों में सेम है. लैडर सिस्टम सिर्फ बदल गया है. क्या बदल गया? लैडर. नॉर्मल रेट्स बदल गए, स्पेशल रेट सेम. बोथ केसेस लॉन्ग टर्म का 20%, बोथ केसेस में शॉर्ट टर्म अंडर 111A 15%, एंड लॉन्ग टर्म अंडर 112A 10% in excess of 1 lakh. Same, the special rates will lottery 30%, that rates will continue. दोनों जगह आपको ये special rates will remain the same. What are the rates of surcharge? Same. दोनों जगह surcharge का rate is going to be the same. What are the rates of surcharge? The rates of surcharge is 10, 15, 25, 37. 10, 15, 25, 37. Both के लिए the rates will be the same. Rates will be the same. Health and education says same. Yes. So health and education says will be same 4% for both. So see how I have done a comparative thing over here. This is a comparative thing. Individual and HUF के लिए, individual and HUF के लिए क्या फर्क पड़ा यहाँ पे? सिर्फ लैडर सिस्टम. अच्छा, गवर्नमेंट आपको कंसेशनल टैक्स रेट दे रही है, पता है आपको 15 लाख तक 1,87,500 टैक्स आता है नए लैडर सिस्टम में. कंसेशनल रेट में, कंसेशनल रेट में आपको बहुत कम टैक्स आता है. 15 लाख के बाद आपको 30% टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ 10 लाख के ऊपर ही आपको 30% टैक्स देना पड़ता है. ये कंसेशनल, एक हाथ से गवर्नमेंट आपको कंसेशन देती है, लेकिन आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. दिस कम्स विथ सैक्रिफाइसेस. एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ AMT लगेगा, यहाँ AMT का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. So quickly, this thing you have to go through one day before the exam and see. Correct? You want to note it down? Anybody? Yes? Okay, quickly note it down. क्योंकि ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले देख के ही जाना पड़ेगा. So please be quick in noting it down. And then I'll tell you which sacrifices you have to do. Then I'll tell you कौन से sacrifices आपको करने. ठीक है? Note it down fast. इसके दो स्टार परफॉर्मर है कि सीनियर और वेरी सीनियर हो, फिर भी आपका BEL बैक में कितना रहेगा? 2.5 लाख ही रहेगा. और स्पेशल रेट सेम है, सरचार्ज सेम है. मिनिमम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है बैक में.
फिनिश नोटिंग? डन? ओके, तो ये हो गया आपका. नाउ व्हाट आर द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव टू डू? सैक्रिफाइसेस इफ यू ट्राई एंड रिमेंबर चैप्टर वाइज इट विल बी वेरी इजी. आप कैसे सैक्रिफाइस याद रखना? चैप्टर वाइज. हर चैप्टर आपका जो भी इनकम टैक्स के चैप्टर्स है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होगा. सबसे बड़ा और मेजर सैक्रिफाइस सैलरी का चैप्टर देता है. सबसे बड़ा और मेजर सैक्रिफाइस कौन देता है? सैलरी. सैलरी गिव्स. इवन हाउस प्रॉपर्टी का सैक्रिफाइस है. दिस इज नॉट कंपल्सरी. इज बैक कंपल्सरी? नो. आपको ये ठीक लग रहा है, आप दोनों वर्किंग करना पड़ेगा. इन रियल लाइफ असेसी नहीं बोलता आई डोंट वांट टू टेक बैक. इन रियल लाइफ आई कैलकुलेट द वर्किंग बोथ द वेज एंड देन वी टेक अ कॉल. अच्छा, कैन वी स्विच इन एंड स्विच आउट? एक साल बैक लेने का, एक साल नहीं लेने का चलता है क्या? हाँ, फॉर सैलरीड पीपल. बट पीपल हु आर हैविंग पीजीबीपी, इफ दे गेट इन बैक दे बेटर रिमेन. इफ यू गेट इन टू बैक देन स्टे इन बैक. क्यों? क्योंकि एक बार आप बाहर आ गए, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बैक का दरवाजा बंद हो गया. आप कभी भी बैक में नहीं जा पाओगे. पीपल हु आर हैविंग पीजीबीपी इनकम, profits and gains of business and profession, they can't switch in switch out. Switch in switch out not possible. You get into back, think carefully and get into back, because once you're out of back, आपके लिए बैक का दरवाजा फिर से नहीं खुलेगा. आपके लिए बैक का दरवाजा फिर से नहीं खुलेगा. Is that clear to everybody? Yes. Okay. Now let us also understand in case of this. Now what are the sacrifices I have to do in back? Can you remember? PGBP में, अच्छा, सैलरी में क्या सैक्रिफाइस करते हैं आपको पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी में आपको अगर एचआरए का एग्जम्पशन मिला होगा तो नहीं मिलेगा. आपको किसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा? एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. एलटीसी नहीं मिलेगा. एलटीसी फुल्ली टैक्सेबल होगा. एचआरए का एग्जम्पशन अगर आपने लिया होगा तो ऐड. इसमें पता है आपको वर्किंग कैसे करना होता है? पहले नॉर्मल एनटीआई निकालने का, नॉर्मल चैप्टर 6 से लेने का, एनटीआई निकालने का, नॉर्मल टैक्स करने का. देन यू विल से 115 बैक. फिर एनटीआई से स्टार्ट करने का. जो जो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे ऐड करते जाओ. जैसे अगर आपने सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड किया होगा, लेस किया होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया होगा, नहीं मिलता बैक में. बैक बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट अलाउड. सैक्रिफाइस योर स्टैंडर्ड डिडक्शन. कैलकुलेट योर इनकम एज इफ नो स्टैंडर्ड डिडक्शन. सो कौन से चैप्टर? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस सैलरी का चैप्टर देता है. एलटीसी नहीं, एचआरए एग्जम्पशन नहीं. हाँ, डेली अलाउंसेस गिवन टू एमपीज एंड एमएलएज, उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. आपको सेक्शन 16 में सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो अगर आप सैलरी इनकम में से आप 50,000 लेस करते हो, आप बैक की वर्किंग करते वक्त, मैम पूरा फिर से करें क्या? नहीं. स्टार्ट विद एनटीआई, ऐड स्टैंडर्ड डिडक्शन, ऐड एंटरटेनमेंट. अगर आपने डिडक्शन ले लिया होगा तो ऐड कर जाओ. एलटीसी ऐड करो, एचआरए एग्जम्पशन ऐड करो. आईसीआई को ना एचपी वाला एडजस्टमेंट पसंद है. एचपी में याद रखना 24B का बेनिफिट नहीं मिलता. व्हाट इज दैट 24B का बेनिफिट? इंटरेस्ट ऑन लोन, बट दिस इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एसओ प्रॉपर्टी. दे हैव गिवन अ क्वेश्चन लाइक दिस जहां पे एलओ प्रॉपर्टी है. एलओ प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट मिलेगा. बैक में क्या सैक्रिफाइस होगा? एसओ का इंटरेस्ट विल बी सैक्रिफाइस्ड. एसओ का इंटरेस्ट विल बी सैक्रिफाइड. तो एचपी क्या सैक्रिफाइस करेगा? ओनली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर अ एसओ प्रॉपर्टी, नॉट फॉर अ एलओ प्रॉपर्टी. ये सैक्रिफाइस कर देगा, ये ऐड करना पड़ेगा. आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू कांट क्लेम दिस बेनिफिट. क्लबिंग भी एक सैक्रिफाइस करता है, 1500 का एग्जम्पशन. माइनर का इनकम जो 1500 का एग्जम्पशन होता है वो भी क्लबिंग सैक्रिफाइस करेगा. पीजीबीपी सैक्रिफाइस करेगा मेजरली 35 AD. पीजीबीपी क्या सैक्रिफाइस करेगा? 35 AD, स्पेसिफाइड बिजनेसेस. एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 20% ऑन प्लांट एंड मशीन मिलता है, पीजीबीपी वो सैक्रिफाइस करेगा. पीजीबीपी 35 AD सैक्रिफाइस करेगा. सी एडिशनल डेप्रिसिएशन. या डोनेशन गिवन टू इंस्टीट्यूट्स, या 35 में जब आप डोनेशन देते हो टू इंस्टीट्यूट्स, वो सैक्रिफाइस करेगा. हाँ, फिर मैंने आपको क्या बोला? क्लबिंग क्या सैक्रिफाइस करेगा? 1500. सैलरी क्या सैक्रिफाइस करेगा? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, एचआरए, एलटीसी एग्जम्पशन, अलाउंसेस टू एमपीज, डेली अलाउंस, वो सैक्रिफाइस करेगा. करेक्ट है? यस. उसके बाद वो क्या सैक्रिफाइस? अभी आईओएस क्या सैक्रिफाइस करता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन. स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन पता है? पेंशन जब एम्प्लॉय की जगह किसको मिलता है? स्टाफ को, उसकी फैमिली को मिलता है. दैट इज कॉल्ड एज फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन वो सैक्रिफाइस करेगा. 1/3 और 15,000 वो नहीं मिलेगा आपको. आईओएस में इतना ही सैक्रिफाइस है. उसके बाद मैम
पूरा चैप्टर 6 से सैक्रिफाइस, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, सिर्फ 2 ही डिडक्शन अलाउड है, 80 JJAA एंड 80 CCD2 मीन्स एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री इज अलाउड। आपने 80C लिया होगा, 80G लिया होगा, डोनेशन फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, सब ऐड करके इनकम आपका बढ़ जाएगा, फिर कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा। You have to calculate your NTI without standard deduction under section 16. Without HP income में अगर आपने interest on borrowed capital less किया होगा तो वो नहीं अलाउ होगा। एंड सबसे बड़ी बात, एक RTP क्वेश्चन या MTP में आया था, आपको HP का लॉस सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। HP के लॉस का सेट ऑफ अलाउड नहीं है। HP के लॉस का सेट ऑफ आप किसी भी हेड से नहीं कर सकते। तो HP भी बड़ा सैक्रिफाइस दे रहा है। एलो प्रॉपर्टी में लॉस आ गया, यू कांट सेट इट ऑफ। नॉर्मली हम सेट ऑफ कर सकते हैं, बट बैक की वर्किंग में सेट ऑफ नहीं कर सकते। बैक की वर्किंग में हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? सैक्रिफाइसेस ध्यान में आ गए क्या? समझ में आ गया कि आपको कौन से चैप्टर क्या क्या सैक्रिफाइस करे? पूरा चैप्टर 6 से सैक्रिफाइस हो रहा है। इफ यू हैव 80G, 80C, 80D, सब कुछ ऐड हो जाएगा। 2 ही डिडक्शंस मिलेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट वाला 80 JJAA वाला और 80 CCD2 एम्प्लॉयर वाला। समझ में आ गया क्या? यस, रेस्ट ऑल विल बी सैक्रिफाइस, मतलब ऐड करना पड़ेगा, इनकम में सब कुछ ऐड करना पड़ेगा और फिर उस पे कंसेशनल टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ कंसेशनल टैक्स रेट का। देन चेक व्हाट इज बेटर, वॉट एवर इज बेटर चूज दैट इन द एग्जाम। डू यू गेट दिस? यस, सो डिड यू अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइसेस दैट बैक डज? नाउ मैम ये बीच में फिर AMT कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, AMT डजंट कम इन पिक्चर व्हेन देयर इज बैक। AMT comes into picture only in normal tax calculation. AMT comes into picture only when there is normal tax calculation. Do you know government gives you certain benefits? Yes, certain benefits that government gives you and government को फिर बहुत दर्द होता है, उनको नहीं पसंद है। जैसे 35AD का सबसे बड़ा बेनिफिट, आपने 50 lakhs की मशीनरी खरीदी। कितनी मशीनरी खरीदी? 50 lakhs की, फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। 100% एक्सपेंडिचर अलाउ। Okay, actually my profit was just 10 lakhs. What is my profit? 10 lakhs. 10 lakhs में से I am saying less 35 AD. पूरा 50 लाख का मशीनरी allowed. Now there appears to be a loss. Government does not get any tax. In fact, next year फिर से ये लॉस सेट ऑफ, आगे भी सेट ऑफ। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे तुम। इसमें तुम्हारी गलती है क्या? डिड यू डू एनीथिंग रॉन्ग? आपने बेनिफिट गवर्नमेंट दिया, वो ही आपने बेनिफिट लिया। फिर भी गवर्नमेंट पहले बेनिफिट दे देती है, बाद में उनको रोना आता है, बोलते यार काय को दे दिया बेनिफिट, अब दिया है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट? सो गवर्नमेंट नाउ सेज नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पे अ सम minimum tax at least. There shouldn't be zero tax paying at all. Why? You're earning. आप बुक्स में एक्चुअली कमा रहे हो। कभी कभी ऐसे फिगर्स भी नहीं होते, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट 1 करोड़ है, फिर तुम बहुत कैपिटलाइजेशन करते, मशीनरीज लेते एंड 35AD का बेनिफिट लेते, 10AA एक्सपोर्ट का पूरा प्रॉफिट एग्जम्प्ट, 80 RRB, 80 QQB, 80 RRB रॉयल्टी फॉर बुक्स, 80 QQB is royalty for books and 80 RRB is royalty for patent. आपने इतने ये बेनिफिट्स लिए, गवर्नमेंट ये बेनिफिट देने के बाद पछता रही है। गवर्नमेंट बोलते यार नॉन टैक्स, नो टैक्स इज कमिंग एट ऑल, जस्ट लुक हियर ना, 10 lakhs का प्रॉफिट। गवर्नमेंट बोलते एक्चुअली यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs, नेक्स्ट ईयर यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40 lakhs, still you will not pay tax. Why? You will offset this entire amount. So government says you made a profit but still not paying tax. They say no 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 no, pay us minimum alternate tax. MAT concept was introduced for corporate assessees. AMT concept is for individuals, non-corporate assessee. तो गवर्नमेंट बोलते अच्छा, फिर assessee बोलते यार तुम क्या चाहते क्या हो?
तुमने बेनिफिट दिया इसलिए हम टैक्स नहीं पे कर रहे. व्हाट डू यू वांट देन? गवर्नमेंट सेज कैलकुलेट योर इनकम एज इफ देयर इज नो बेनिफिट गिवन टू यू. अच्छा, कैलकुलेटेड एज इफ देयर इज नो बेनिफिट. अच्छा, तो अगर बेनिफिट होता ही नहीं तो 35 AD नहीं मिलता. तो 40 lakhs में से आई विल एड 50 lakhs. आई विल कम बैक टू माई 10 lakhs. गवर्नमेंट सेज नहीं, बट तुम बोलते अच्छा 35 AD नहीं देते तो मुझे डेप्रिसिएशन तो देते ना. क्या देते? डेप्रिसिएशन तो देते ही थे ना. तो यहाँ 50 lakhs की मशीनरी पे आप 15% डेप्रिसिएशन देते कि नहीं? सो लेस डेप्रिसिएशन ऑन 50 lakhs. लेस डेप्रिसिएशन ऑन 50 lakhs. 50 lakhs पे 15% बोलो कितना आ रहा है? 7,50,000. तो तुम्हारा इनकम कितना होएगा? 2,50,000 आएगा, है ना. 10 lakhs का प्रॉफिट था ऑलरेडी, सो 2,50,000 इनकम आएगा. दिस इज कॉल्ड एज ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम, एंड ऑन दिस गवर्नमेंट सेज कैलकुलेट टैक्स. Okay, so from no tax, government says no, we still want a tax. Ma'am, when do we calculate this AMT? When there are only few benefits, you have to learn these and go. 35 AD. Question में 35 AD आया और टैक्स कैलकुलेशन आया, माने AMT आ गया. क्वेश्चन में 10 AA आया, SEZ वाला प्रॉफिट. आपको पता है SEZ इज अ यूनिट जिनको टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं. SEZ का 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जम्प्ट. अपन 10 AA में वो माइनस कर देते हैं पूरा एक्सपोर्ट का प्रॉफिट. 10 AA, 35 AD, 80 RRB, 80 QQB and 80 JJAA. 5 benefits you have to learn and go. Where AMT आपको तकलीफ देगा. अब क्या हुआ? AMT आने की वजह से ऐसे ही रोने लगा कि यार तुम मुझसे टैक्स ले रही हो, कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम मी. देन गवर्नमेंट सेज नो, डोंट वरी. AMT में जो भी टैक्स पे किया वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. हम आप आगे तुम कैरी फॉरवर्ड करो. आज टैक्स दे दो लेकिन उसका बेनिफिट आगे तुम कैरी फॉरवर्ड करो. ओके, नाउ इफ योर टैक्स, आई विल शो यू. Again, this was a module question. I'll just show you that calculation, then you will get a better idea. अच्छा मैम, AMT पे ओके लिसन ना, AMT पे टैक्स कैसे आता है? AMT के कुछ रूल्स है, you have to understand that. See here, when does AMT come into picture? AMT comes into picture for these 5 benefits. Come on, so what are these 5 benefits quickly? 10 AA, 35 AD, 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB. Is that okay? Yes. Now calculate ATI. ATI is adjusted total income. Calculate as if तुम भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए कि हमने तुमको ये बेनिफिट दिया था. Forget we gave you 35 AD. Forget we gave you 10 AA. Calculate your income without these benefits. On this income, calculate tax at 18.5%. What is the rate of AMT? 18.5%. And the best thing here is the rate is 18.5 flat. 18.5 flat and on your ATI. स्ट्रेट अवे 18.5. एंड स्पेशल रेट वगैरह कुछ नहीं है इधर. विनिंग्स हो, कैपिटल गेन्स हो, कुछ भी हो, टैक्स का रेट होगा 18.5%. टैक्स रेट विल बी स्ट्रेट 18.5%. सरचार्ज नॉर्मल 10, 15, 25, 37. Health and education says 4%. Now what will be the tax payable? Calculate the normal tax or AMT. Government says whichever is higher. क्योंकि नॉर्मल टैक्स नॉर्मली 0 ही आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है. इसलिए गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं, AMT पे करो. एंड वॉट एवर एक्स्ट्रा यू हैव पेड यू विल गेट अ सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा. सो जस्ट नोट दिस डाउन. इफ यू वांट क्विकली आई विल डू वन स्मॉल क्वेश्चन. तो द लॉजिक ऑफ AMT एंड दिस विल बी डन. सो दिस कॉन्सेप्ट विल बी थॉरली ओवर फॉर अस. नोट डाउन कर रहे हो क्या AMT? ऐसे नोट डाउन करो कि एक दिन पहले एग्जाम के ये देख के जाना ही है, क्योंकि पहला कंपलसरी क्वेश्चन इस पे आ सकता है.
डन? डन है क्या? मॉड्यूल का एक क्वेश्चन लू क्या? हाँ, सेम आई थिंक इट्स देयर इन द मॉड्यूल. कैन somebody just open the module and check this question is there? Can you just open the module and check this question? I'll tell you. वाईफाई आहे का रे इथे? कनेक्टेड आहे का? अच्छा, I'll tell you which one. मैं यहां से लेती हूँ, फिर आप आपको 10 AA याद है क्या, कैसे निकालते हैं एग्जाम्शन? यू रिमेम्बर 10 AA? या सी दिस इज अ मॉड्यूल क्वेश्चन. अब मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन 10 है, बट ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सो आई कैन टेल यू मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन नंबर है. Or can you just take a picture of it so it's there in front of you in the mobile? Module ka. So this is question number 11 in the module. This covers everything. It covers AMT, it covers back, it covers everything. So this one question we do and a concept will be done. ठीक है? So कर लेंगे एक question तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा important concept है तो हो ही जाएगा. Ready? Yes? Okay, let's read. Mr. X, an individual, set up a unit in SEZ in financial year 17-18 for production of washing machines. The unit fulfills all the conditions of Section 10AA of the Income Tax Act. During the financial year 21-22, he has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agricultural produce. Do you know warehousing for agri-produce gets covered under 35 AD? Yes. And he has an SEZ, so he is having 10 AA also. It fulfills all the conditions of Section 35 AD. Capital expenditure in respect of the warehouse is 75 lakhs, including cost of land 10 lakhs. The warehouse became operational with effect from 1st April 21 and expenditure of 75 lakhs was capitalized in the books on that date. Relevant details for the financial year are as under. Profit of unit located in SEZ 40 lakhs. Export sale of the above units is 80 lakhs. Domestic sales of above unit is 20 lakhs. Profit from operation of warehousing. Warehouse से आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. कितना प्रॉफिट हुआ? 1 करोड़. Before computing 35AD deduction. Compute income tax including AMT भी बोला है. Under section 115 JC, liability for Mr. X for AY 22-23, both as per regular provisions of income tax as well as under BAC. तो आपने को क्या बोला है? BAC भी बोला है प्लस नॉर्मल भी बोला है. ठीक है? सो शुड वी डू दिस क्वेश्चन? यस. सो लेट्स डू द नॉर्मल वर्किंग फर्स्ट. रेडी? प्लीज नोटबुक में लिख के लेना. प्रॉब्लम देखना अलग बात होती है और प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करना अलग बात होती है. प्लीज आप क्वेश्चन देखिएगा मत, प्लीज सॉल्व इट विथ मी. भले ही हम रफ में करेंगे, फटाफट करेंगे, बट वील सॉल्व इट. रेडी? यस. सो इट्स अ मॉड्यूल क्वेश्चन. मॉड्यूल में पेज नंबर कुछ रेफरेंस बोल सकते हो क्या?
8.63. So this is 8.63 from the module, and in the module it's question number 11. My notes, it is question number 10. One second, I'll also need this question. I'll take a picture of it. All right, let's solve it now. Question number 10, or whatever is the number. Now note down the facts of the question. There is SEZ and there is exports. So there are chances of 10 AA. करेक्ट. 10 AA का प्रेजेंटेशन कभी कभी प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, कभी उसको चैप्टर 6 से जैसा भी माइनस करते हैं. ICAI खुद इसको रियलिटी में भी ये कभी अलग दोनों मेथड्स अलाउड होते हैं, और ICAI भी RTP में कभी एग्जम्पशन करके ट्रीट करती है, कभी इसको डिडक्शन करके भी लेती है. सो यू डू एनी वेज, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट योर मार्क्स. सो SEZ में देर इज एक्सपोर्ट्स. नाउ कैन यू टेल व्हेन दिस यूनिट वाज सेट अप? डू यू नो SEZ में क्या होता है? एक्सपोर्ट के जो प्रॉफिट्स होते हैं, एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट होता है, आपको फर्स्ट 5 years में कितना डिडक्शन मिलता है? 100%. नेक्स्ट 5 years में आपको 50% मिलता है, और लास्ट की कैटेगरी, लास्ट के आखिरी के 5 years में 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट वुड बी एग्जम्प्ट इफ यू पुट द मनी इनटू स्पेशल रिजर्व. तो आपको हमेशा देखना होता है कि आप फर्स्ट 5 years में आ रहे हो या बीच के 15 साल तक आपको ये बेनिफिट मिलता है. SEZ का बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर 15 years. फर्स्ट 5 इट इज 100. तो आप मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग कब किया है? Yes, the unit during the financial year 21-22, financial year 17-18. Okay, so FY 17-18 was the first year. Then you are in FY 18-19. Then there is FY 19-20, FY 20-21. Oh, and we are in FY 21-22. So are we in the 5th year? So how much profit 10 AA का बेनिफिट मिलेगा? 100% of export profit. 100% of export profit. Correct? So we are in the 5th year. पहले 5 साल 100%, 6, 7, 8, 9, 10, 50%, 11, 12, 13, 14, 15, 50%, provided you put money into a special reserve. So 10 AA का benefit is equal to 100% of export profits. Now let us calculate export profits. What is the total profit from this? 40 lakhs. 40 lakhs is the profit for a total turnover of 1 crore. Out of that, domestic turnover is how much? 20. मतलब export turnover will be 80 lakhs. Is that correct? How did I get this 80? 1 crore minus 20 lakhs. 20 lakhs is domestic turnover, means 80 lakhs is export turnover. So how much is this coming to? 32 lakhs. So आपको 32 lakhs का 10 AA का बेनिफिट मिलेगा. करेक्ट? पहले क्या बेनिफिट मिलेगा नोट करके ले लो. नोट डाउन. 10 AA 32 lakhs 100%. मैम if this was 6th year then 50% of 32 lakhs means 16 lakhs. करेक्ट? डन है? पक्का? Now 35 AD, second benefit you're getting 35 AD. Warehousing facility. Total warehousing facility पे आपका कितना खर्चा हुआ? Total capex. Total capex आपका कितना खर्चा हुआ? 75 lakhs. उसमें से cost of land है. हाँ, उसमें से cost of land कितना है? 10 lakhs. Less cost of land. Cost of land is 10 lakhs. 10 lakhs minus करने का बचा कितना? What does 35 AD say? 100% of capex is allowable. बरोबर ना?
झेपता है ना तुमको? कॉस्ट ऑफ लँड अलाउड नाही आहे, तो 100% ऑफ कॅपेक्स म्हणजे किती? 65 lakhs इज अलावेबल. कितना अलावेबल होगा? 65 lakhs. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस. सो 65 lakhs इज अलावेबल. ऑल ओके विद दिस? तो दो बेनिफिट्स मिलने वाले, 65 lakhs का और 32 lakhs का. करेक्ट? Yes. Now let's compute the tax. Write down the heading. This is the tax calculation. Of course, I'm not focusing much on presentation right now. Yes. So tax calculation under normal provisions. नॉर्मल माने यहाँ AMT भी कैलकुलेट करना पड़ता है. बैक में AMT नहीं आता है, नॉर्मल में AMT आता है. मैम AMT क्यों आ रहा है? जब जब क्वेश्चन में 10 AA, 35 AD, 80 RRB, 80 QQB, 80 JJAA आएगा, आपको AMT सॉल्व करना पड़ेगा. इज दैट ओके? यस. सो नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट फ्रॉम वेयरहाउसिंग बिजनेस? वेयरहाउसिंग बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 1 crore 5 lakhs. इसमें से लेस 35 AD 65 lakhs. तो अब वेयरहाउसिंग का बेनिफिट बचेगा कितना? अभी प्रॉफिट आएगा कितना? कितना रे? 40 lakhs. उसके बाद SEZ का प्रॉफिट, ये फर्स्ट वेयरहाउसिंग का. दूसरा SEZ. SEZ का प्रॉफिट, हाँ पूरा 40. सो यू कैन से पूरा 40. I have two presentations. I can do 40 minus 32 lakhs here only and get 8, or I can claim 10 AA as a deduction. Both workings are given correct as per ICI. Is that okay? Yes. So I'll do it here. Maybe GTI is coming to 80 lakhs. I will say here less 10 AA. कितना? 32. तो मेरा NTI और कुछ चैप्टर 6 से है क्या इधर? So my NTI is coming to 80 minus 32, 48 lakhs. Check. गवर्नमेंट को दर्द हो रहा है, तुम्हारा 1 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे बिजनेस से 40 lakhs का प्रॉफिट, मतलब एकदम से अभी तुम टैक्स सिर्फ 48 lakhs पे देने वाले हो. करेक्ट? यस. नाउ ऑन 48 lakhs नॉर्मल टैक्स. कैलकुलेट ऑन 48 lakhs नॉर्मल टैक्स. नॉर्मल टैक्स मतलब 10 लाख तक टैक्स कितना है? 1,12,500. 38 lakhs पे 30%. कैलकुलेट द नॉर्मल टैक्स. 11 lakh. ओए हाँ 12,52,000. ये चेक करो. चेक द कैलकुलेशन. आई हैव द आंसर सॉल्व हियर बट आई एम नॉट. 12,52,500. Any surcharge? No ma'am, because income is below 50 lakhs. Up to 50 lakhs there is no surcharge. So 12,52,500. Should I add cess now? Health and education says 4%. Calculate. टोटल बोल रहा है 13 lakh. नहीं 50,000. ये तो क्यों गलती कर रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा एग्जाम में. ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करो. हाँ कि नहीं? सो 13,02,000 ये बोला था. ओके देन नो प्रॉब्लम. 13,02,600. ओके है क्या? दिस इज नॉर्मल टैक्स. अब नॉर्मल के साथ कौन आएगा? AMT. अब गवर्नमेंट रोती है, गवर्नमेंट बोलती है यार बहुत कम टैक्स आया है, तो गवर्नमेंट बोलती है अब ATI निकालो. व्हाट इज ATI? एडजस्टेड टोटल इनकम. एज इफ देयर वाज नो बेनिफिट. ओह सो लेट्स कैलकुलेट ATI. सो नाउ राइट डाउन AMT कैलकुलेशन. किसका कैलकुलेशन करेंगे? AMT कैलकुलेशन. ATI निकालेंगे. तो ATI कितना था? अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है? तुम अभी ATI कितना निकाले? 48. उसमें ऐड डोंट टेक 10 AA, 32 lakhs ऐड कर दो. ओ डोंट टेक 35 AD. तुम बोलते क्या नाटक चल रहा है? पहले तुम खुद बेनिफिट दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हमारी लाइफ यहाँ कॉम्प्लिकेटेड कर दी है वर्किंग करने में. दो ही मत बेनिफिट. ऐड 35 AD. कितना ऐड करेंगे? लेस
इस कैपिटल एसेट पे डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। मैम अभी ये क्या है, दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो अगर 65 lakhs तुम खर्चा अलाउ नहीं करते, हम बुक्स में कैपिटलाइज करते, डेप्रिसिएशन ले लेते। सो लेस डेप्रिसिएशन 10% वी आर अज्यूमिंग इट इज अ बिल्डिंग। So 6,50,000. So my ATI adjusted total income ये ऐड करना है और ये माइनस करना है, भूलना नहीं। अब गवर्नमेंट बोली ले अब 1 crore पे टैक्स पे कर। हाँ 1 crore 38 lakh 15 अरे yeah. Now I should pay ATI at what rate? Straight AMT will be at 18 point, straight निकालना at 18.5% on 1,38,50,000. 25 lakhs, हाँ 250. Yeah, will there be surcharge? Yes. Look at the ATI, it's gone above 1 crore. Oh my God, above 1 crore up to 2 crore. What is the rate of surcharge? 15%. So add surcharge at 15%. T plus surcharge. 3,38. 8,856,4,192. 29,46,588. Please check. अरे check ना रे बाबा. Add 4% health and education cess. Tell me what's the tax liability. आज की तारीख में बताते क्या जल्दी? 30 lakhs 450 अप्रोक्सीमेट क्या होता है? वैसे भी इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा बाद में। 0.5 है तो 2 कर दे। रुकना, पहले मैं हायर क्या देखते, वैसे पे करते वक्त राउंड ऑफ करके दे दूंगी। हाँ अब बोलो नॉर्मल वाला टैक्स कितना आया? 1 मिनट, ऊपर हमने निकाला 13,02,000। ओ माय गॉड। एंड AMT में गवर्नमेंट आपसे राउंड ऑफ करके लेगी 30,64,450। कौन खुश हो गया यहाँ पे? गवर्नमेंट। विच एवर इज हायर, तो यू विल हैव टू पे अ टैक्स ऑफ 30,64,450. Ma'am, this is not fair. Agreed. Totally not fair. I have done in reality a client builders case. आपको ATI की सीरीज पे भी AMT लगता है। इतना टैक्स, करोड़ों का टैक्स पे किया, इतना बेनिफिट देने के बाद टैक्स 0 आ रहा था AMT की वजह से, करोड़ों का टैक्स, और उसको वापस लेने में इट इज बिग टास्क। वो क्रेडिट वापस लेने में बहुत प्लानिंग करके अब भी हम ले रहे हैं वो क्रेडिट। नाउ वी आर इन अ फेज वेयर वी आर टेकिंग द क्रेडिट बैक। सो बेटा यार गवर्नमेंट इज हैप्पी। अब कौन रोएगा यहाँ पे? असेसी। असेसी बोलेगा मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया। क्या यार तुमने बेनिफिट दिया तो मेरा टैक्स 13,02,600 आ रहा था, अब तुम मेरे से 30,64,450 ले रहे, कितना ज्यादा ले रहे हैं? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? 17,61,000 क्रेडिट 17,61,000। व्हाट इज दिस? डू यू नो गवर्नमेंट सेज टेक अ क्रेडिट, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। 30,64,450 माइनस 13,02,600। गवर्नमेंट से इतना टैक्स तुमने ज्यादा पे किया, ये तुम्हारा पैसा हमारे पास जमा है बिना इंटरेस्ट के। गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स जमा है, क्या गवर्नमेंट इस पैसे पे इंटरेस्ट देगी? नो, नहीं देगी। ये पैसे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। How to recover it right now? Don't get into these complications. Just know that this money is paid, extra tax you have paid. It's lying with the government. अगले टाइम टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट होगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो। Don't get into those complications right now.
रिकवरी के, बट ये नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन था, नॉर्मल। और अगर ये कौन से बेनिफिट्स पे एएमटी कैलकुलेट करोगे? 5, 10 AA, 35 AD, 80 RRB, 80 QQB, 80 JJAA, ये 5 सेक्शन नंबर बेनिफिट्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। और मैं ये मेरे मन का क्वेश्चन नहीं ले रही, मैं ये क्वेश्चन कहाँ से ले रही हूँ? मॉड्यूल से लिया। मॉड्यूल में ये एक और एक सिद्धांत वाला क्वेश्चन है। सिद्धांत वाले क्वेश्चन में एचपी और सैलरी का कॉम्बो है, वहां पे भी वो क्या क्या सैक्रिफाइस करता है बैक में, वो भी आप देखना। तो ये वाला तो मैं अभी करवाऊंगी, लेकिन आप अगर सिद्धांत वाला क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो आपका ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस। अब बैक बचा है ना, लेकिन हाँ, अब वर्किंग अंडर बैक। नाउ राइट डाउन टैक्स वर्किंग अंडर बैक। सो नॉर्मल में एसएससी को टैक्स कितना पे करने को लगाओगे? 30,64,450। नाउ लेट अस डू बैक, टैक्स वर्किंग अंडर बैक। मैं आपको एक चीज बोलूं, आप एग्जाम में आपको कभी कभी लगता है मैम हम ब्लैंक हो गए, आपकी गलती नहीं है। मैं रेगुलर क्लास में रिवीजन लेती हूँ, मैं सैलरी के क्वेश्चंस पूछती हूँ, अचानक से मैंने पीजीबीपी पूछ लिया, आप आंसर नहीं कर पाते हो, you can't answer. It takes time in the exam. Learn to switch in and switch out. Give yourself some time. अचानक don't start doing back working immediately. Everybody will be blank at this point. Wait, what is back? Back is give yourself this time in the exam. This is a very important hint which will help you. तो आप खुद को टाइम दो कि 115 बैक क्या है? कंसेशनल टैक्स रेट। ओ यहाँ पे क्या क्या है? अच्छा, लैडर सिस्टम वो है, यहाँ पे 15 लाख, 5-5, 2.5 लाख इनकम में ऐड करो, 5-5 टैक्स में ऐड करो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सरचार्ज के रेट्स नॉर्मल, टैक्स कैपिटल गेन्स के रेट्स नॉर्मल, सेस नॉर्मल, बीएल असेसी सीनियर नॉन सीनियर सबके लिए 2.5 लाख। फिर कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, हर चैप्टर का सैक्रिफाइस होगा। अच्छा, सैलरी सबसे बड़ा, एचपी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एसओ का नहीं, एचपी का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्लबिंग सैक्रिफाइस करेगा, पीजीबीपी 35 एडी सैक्रिफाइस करेगा, एग्जम्पशन 10 AA सैक्रिफाइस करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एनटीआई ओरिजिनल तुम्हारा एनटीआई क्या आया था? ओरिजिनल एनटीआई अपना क्या आया था? 48 lakhs। यहाँ पे आई टेल यू बाय चांस एएमटी और इसका वर्किंग बाय चांस सेम आएगा, जरूरी नहीं है हर बार सेम आएगा। ठीक है, ओरिजिनल एनटीआई वाज 48 lakhs। जो भी सैक्रिफाइसेस है दे दो, इनकम में ऐड कर दो। सर्टन सैक्रिफाइसेस एट 10 AA नॉट अलाउड इन बैक 32 lakhs। एड 35 AD 65 lakhs लेस, इसका डेप्रिसिएशन तो देना ही पड़ेगा। इनकम सेम आ रहा है ना, 1,38,50,000। इज दैट करेक्ट? 1,38,50,000। नाउ द टैक्स दैट यू विल कैलकुलेट विल बी अंडर 115 बैक। मतलब पहला 0 to 2.5 लाख 0%, 2.5 से 5 लाख तक 5% बैक में है ना अपन। 2.5 और 5 लाख के बीच में कितना इनकम है? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे कितना? 5%, तो कितना आता है? 12,500। 5 और 10 लाख के बीच में कितना इनकम है? 5 लाख। इसमें टैक्स रेट 10। ये बैक का लैडर चल रहा है, 0, 2.5, 5, 7.5। यस, 7.5। 2.5 लाख पे ये कितना आएगा? 25। 7.5 lakhs to 10 lakhs। हाँ रुक, 15%। 10 lakhs to 12.5, 20%। 50 to 500 क्या? 50? ओ 37 and 12 करेक्ट। 50? 12.5 lakhs to 15 lakhs कितना? 62,500। इसका टोटल 187,500 है क्या? या अप टू 15 lakhs इज 187,500। 15 लाख के ऊपर
1 crore, पहले अमाउंट बता कितना है. 1 crore 38 लाख 50 में से 15 लाख काउंट कर दिया अपन ने. इनकम कितना बचा? 1 crore 23 लाख 50,000. इस पे टैक्स करे 30%. 37 लाख टोटल. 38,92,500. सरचार्ज लगेगा क्या? नॉर्मल रेट्स ऑफ सरचार्ज 1 और 2 करोड़ के बीच में सरचार्ज का रेट क्या है? 15%. कितना सरचार्ज 15% बोले तो 83,875. तो कितना आ रहा है? 44 lakhs 375. 4% ऐड करना पड़ेगा. 55. 55 lakh. What is better now? See, this is back. नॉर्मल में तुमको 33 lakhs आया था ना कुछ. नॉर्मल इज बेटर. बैक नहीं ऑप्ट करने का. बैक में टैक्स 46 lakhs 55 आ रहा है. चेक करो कैलकुलेशन सही है क्या. मेरे पास सॉल्व किया हुआ आंसर है, मैं भी चेक करती हूँ. मॉड्यूल से चेक कर लो बेटा. व्हाट इज बेटर हियर? मैम नॉर्मल इज बेटर. 30,64,000 टैक्स पे कर रहे. 30,64,450 वो भी क्रेडिट भी मिल रहा है. नॉर्मल इज बेटर देन बैक हियर. लेट मी चेक फ्रॉम द मॉड्यूल. इज योर आंसर टेलिंग? या 46 अपना ये है ना 46, 55, 430. या सो कंक्लूजन क्या दिया पता है? ये देखो, ये नॉर्मल प्रोविजन में एएमटी की वजह से 30 लाख टैक्स आ रहा है, लेकिन बैक में बहुत ज्यादा आ रहा है 46 lakhs 55,000 समथिंग. सो व्हाट इज बेटर? नॉर्मल. नॉर्मल इज बेटर और उस नॉर्मल में टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है. समझ में आ गया? यस. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, इस क्वेश्चन में सब कुछ है, लेकिन आई वॉन्ट यू स्टिल टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल, एंड विच इज दैट सिद्धांत. जस्ट चेक करना, मॉड्यूल में होगा सिद्धांत वाला क्वेश्चन 7. हाँ, तो वो क्वेश्चन भी आपने पक्का सॉल्व करना है, तब जाके आपका एक बैक का पिक्चर आ जाएगा आपको कि क्या क्या सैक्रिफाइस. सिद्धांत वाले क्वेश्चन में काफी सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं. ओके, तो सिद्धांत वाला क्वेश्चन आपने करना चाहिए डेफिनेटली. यू मस्ट डू इट. देन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आवर्स विल बी कंप्लीटली ओवर कि कुछ सैक्रिफाइसेस किए बैक में, है ना. Yeah, I think this is सिद्धांत वाला क्वेश्चन. Yeah. तो सिद्धांत में हमने बहुत सैक्रिफाइसेस किए. पता है क्या, सिद्धांत वाले क्वेश्चन में पीजीबीपी कुछ आईओएस था या एचपी रेंट है, चैप्टर 6 से दोनों वर्किंग किया. तो 80D 80C सब एड बैक किया है हमने. ठीक है, तो डू यू वांट मी टू डू दैट और विल यू डू इट ऑन योर ओन? हाँ, आप कर लोगे ना. तो विद दिस कैन आई से 115 बैक कंबाइंड प्रॉब्लम्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है 115 बैक और AMT. Is it clear? So one thing is very clear, I'll tell you again. Your normal tax rate comes with AMT. Normal tax के साथ आता है AMT का बैगेज, और आता है 115 बैक में there is no AMT. तो कोई आपको बोलेगा नहीं नॉर्मल के साथ आपको नॉर्मल वर्किंग या AMT करना पड़ेगा. AMT में वर्किंग ऐसे करते एज इफ बेनिफिट हो ही नहीं. फिर गवर्नमेंट बोलते नहीं इतना मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बेनिफिट हो या बेनिफिट ना हो. ठीक है, यस. तो नॉर्मल में AMT आता है, बैक में AMT नहीं आता. नॉर्मल का लैडर सिस्टम नॉर्मल वाला है, AMT बैक में वो 15 लाख वाला लैडर सिस्टम है. बैक और नॉर्मल में स्पेशल रेट्स सेम है, सरचार्ज के रूल्स सेम है, हेल्थ एजुकेशन सेस सेम है. बैक में सैक्रिफाइसेस है. रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस चैप्टर वाइज, देन इट इज इजी फॉर अस. इज दैट ओके?
Yes. So is 115 back and AMT done? Yes. So this is done. Okay. How much time is there? Little time. You want a lunch break by what? 2 o'clock लेंगे? चलेगा ना? हाँ. तो अनादर अभी थोड़ा सा डिडक्शंस का पार्ट दिखा दूं क्या आपको? Yes, चलेगा?